السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی تجارت کو بڑھانے کے معاہدوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والوں کو پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے نیوز بریفنگ کے دوران پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے سے متعلق سوال پر کہا کہ ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ کسی کو بھی ایران کے ساتھ تجارتی روابط کو فروغ دیتے وقت امریکی پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے۔ تاہم پاکستان کی حکومت ہی اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف سے متعلق بات کر سکتی ہے۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر امریکہ کی تازہ ترین پابندیوں پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے پرزہ جات فراہم کرنے والی چینی اور بیلاروسی کمپنیاں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی ترسیل میں ملوث تھیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ دنیا میں کہیں بھی پھیلاؤ کے نیٹ ورکس کے خلاف اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی خریداری کی سرگرمیوں کو روکتا رہے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے پابندیوں کے رد عمل میں کہا تھا کہ پاکستان برآمدی کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ ایران اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے غیر قانونی طور پر پڑوسی ممالک اور غیر ملکی سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے 3 روزہ دورے کے بعد بدھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے ایک مشترکہ بیان جاری ہوا جس میں اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے پہلے سے غیر مستحکم خطے میں بڑے پیمانے پر کشیدگی کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے لاپتہ افراد کے معاملے پر کابینہ کمیٹی کی تشکیل 9 کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا، اس کی بہت سی جہتیں ہیں۔ حکومت کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے جبری گمشدگیوں کے معاملے کو اٹھایا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ ملک بھر میں لوگوں کے اغوا اور جبری گمشدگی کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے کچھ اہلکاروں نے مبینہ طور پر مقدمہ چلائے بغیر افراد کو قید میں رکھا ہے اور ان کے مقام کو ظاہر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ ایک عرصے سے بحث کا موضوع ہے اور حکومت اس ضمن میں مختلف جواز پیش کرتی آئی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ حکومت اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دوحہ کے تیسرے اجلاس میں شرکت کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہی۔ انہوں نے یہ بات روس کے خصوصی ایلچی ضمیر کوبلوف سے ملاقات میں کہی۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں افغانستان اور روس کے درمیان دو طرفہ سیاسی، اقتصادی معاملات اور علاقائی مسائل سمیت افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے آئندہ اجلاس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ متقی نے مزید کہا کہ افغان حکومت اقوام متحدہ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور بعد میں اپنے موقف کا اظہار کرے گی۔ مشرق وسطیٰ میں انسانی ہمدردی کے امور کے لیے ایک اعلیٰ امریکی سفارتکار کا کہنا ہے کہ غزہ میں مزید امداد پہنچ رہی ہے، لیکن امریکہ خبردار کرتا ہے کہ ایک مناسب، قابل اعتبار اور قابل عمل انسانی ہمدردی کے منصوبے کے بغیر رفح کے زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر مدد کی ترسیل میں
पेचीदगियों की वजह से। मशरक़ वस्ती में बाइडन इंतजामिया के खुसूसी एलची डेविड फील्ड का कहना है कि रोजाना औसतन 200 ट्रक गजा में इमदाद लेकर जा रहे हैं। दूसरी जानिब एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से तज्जिया करदा सैटेलाइट तस्वीर में जुनूबी गजा की पट्टी में खान यूनुस के करीब खेमों का एक नया कंपाउंड बनाया जा रहा है, क्योंकि इसराइली फौज इशारा दे रही है कि वो रफा शहर पर हमले का मंसूबा रखती है। खान यूनुस को हालिया हफ्तों में बारहा इसराइली फौजी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया है। इसराइल ने कहा है कि वो जुनूबी शहर पर मुतवक्के हमले के दौरान रफा से शहरियों को निकालने का इरादा रखता है, जहां जंग के दौरान लाखों अफराद पनाह लिए हुए हैं। अमरीका गजा में इज्तिमाई कब्रों की इत्तलात से वाकिफ है और उसने इसराइल की हुकूमत से इजाफी वजाहत और मालूमात मांगी है। ये बात मंगल के रोज अमरीकी महकमा खारजा के नायब प्रिंसिपल तर्जुमान विदेंत पटेल ने मामूल की ब्रीफिंग में कही। फलस्तीनी हुकाम ने इस हफ्ते खान यूनुस के एक अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों में सैकड़ों लाशें मिलने की इत्तला दी थी। अमरीकी फौज ने मंगल के रोज इराक की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ईरान से मुंसलिक मलेशिया के पीर को किए गए नाकाम हमलों के बाद इराक और शाम दोनों में अमरीकी फौजियों की हिफाजत के लिए इक़दामात करे। फजाइया के मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि अगर हमले जारी रहे तो अमरीका अपनी अफवाज का दिफा करने से दरेक नहीं करेगा। राइडर ने मजीद कहा कि 22 अप्रैल को ईरान से मुंसलिक मलेशिया ग्रुपों ने इराक और शाम में अमरीकी अफवाज पर 2 नाकाम हमले किए थे। 4 फरवरी के बाद इत्तेहादियों की तनसीबात पर ये पहले हमले हैं। इन हमलों ने इत्तेहादी और इराकी एहलकारों को खतरे में डाल दिया है। गजा जंग के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाले एहतजाज का दायरा अमरीका के दीगर तालीमी इदारों तक फैलकर एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया है। तलबा के एहतजाज को आज़ादी इजहार और यहूद मुखालिफत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तलबा का मुतालबा है कि गजा जंग फौरी खत्म की जाए और इसराइल को अमरीकी हथियारों की फराहमी रोकी जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन बुध को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यहूदी तलबा से मुलाकात का इरादा रखते हैं और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तालीमी इदारों में यहूद मुखालिफत से मुताल्लिक बात करेंगे। तलबा का कहना है कि मुजाहिरों को यहूद मुखालिफत से न जोड़ा जाए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन 1 साल से भी कम अरसे में अपने दूसरे दौरे पर बुध को चीन पहुंचे। वो हरीफ ताकत के साथ रूस की हिमायत समेत कई मसाइल पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन शंघाई पहुंचे हैं, जहां वो कारोबारी रहनुमाओं और नौजवानों से दोस्ताना माहौल में मुलाकात करेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट ने भी यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए $95 अरब जंगी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया है, जो सदर बाइडन के दस्तखत के बाद कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस इमदाद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। चीन ने बुध के रोज खबरदार किया है कि अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से ताइवान के लिए $8 बिलियन की फौजी इमदाद मुख्तस किए जाने के बाद तसादुम के खतरे में इजाफा हुआ है। वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अमेरिका और ताइवान के फौजी ताल्लुकात मजबूत करने से ताइवान की सलामती नहीं होगी। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका को ताइवान को मुसल्लह करने के इक़दामात बंद कर देने चाहिए। वांग ने मुतनब्बिह किया कि इससे तनाव और अबनाए ताइवान में तसादुम के खतरे में इजाफा होगा। रूसी हुकाम ने बुध के रोज इत्तला दी है कि मगरबी रूस के कुछ हिस्सों को यूक्रेन के ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया है। उसके नतीजे में आग भड़क उठी।
सेमोलेंस्क रीजन के गवर्नर वॉजिली एनोहिन ने टेलीग्राम पर बताया कि आग सेमोलेंस्क और यार्तेसिवा अजला में लगी थी, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि उसके फजाई दिफा ने सेमोलेंस्क के ऊपर एक ड्रोन और वॉरन्स के ऊपर 2 ड्रोन मार गिराए। सरहद की दूसरी जानिब खार्कियव में हुक्काम ने बुध को इत्तला दी कि रूस ने खार्कियव शहर पर मिसाइलों से हमला किया, जिससे कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी कांग्रेस ने दुनिया भर में मकबूल सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर मशरूत पाबंदी से मुताल्लिक एक बिल की मंजूरी दे दी है। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर बिल के तहत टिकटॉक की चीनी मालिक कंपनी को अगले 9 माह के अंदर इस प्लेटफॉर्म के असासों से अपने आप को अलग करना होगा। अगर ऐसा न हुआ तो अमेरिका में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अमरीकी कानून साजों को खदशा है कि चीन टिकटॉक ऐप के जरिए अमरीकियों के डेटा तक रसाई हासिल करने के अलावा उनकी निगरानी कर सकता है। दूसरी जानिब टिकटॉक की मालिक कंपनी का कहना है कि उसने अमरीकी सारिफीन का डेटा चीनी हुकूमत के साथ शेयर नहीं किया है और न ही वो ऐसा करेगी। कंपनी ने फौरी तौर पर कांग्रेस के इक़दाम पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन हफ्ते के आखिर में उसने अपने मुलाजमीन से कहा था कि वो कानून को रोकने की कोशिश करने के लिए जल्द अदालत से रुजू करेगी। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।